فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا فاطمہ زہرا. تم سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کیا تم لوگ مرد ہو؟ مرد ہو تو آ کے صرف مجھ ایک عورت کا مقابلہ کرو، پھر میں بتاؤں گی پیچھے سے وار نہیں، سامنے آ کر لڑو. سامنے آ کر لڑیں گے ہمارے جوان ماشاءاللہ سے اتنے زندہ دل اور اتنے ہمت والے ہیں کہ آپ کو بتا دیں گے کہ ہم شیعہ قوم، ہم مسلمان، ہم پاکستانی ہے کیا آخر. اچھا، میں ساری قوم کو یہ بتانا چاہتی ہوں یہ صرف سنی شیعہ اور یہ ساری مسیحی برادری کا مسئلہ نہیں، یہ پورے پاکستانیوں کا مسئلہ. کا غم مناتے ہیں، اپنی اولاد سے کہیں بڑھ کے غم یہ پیارا ہے. تم شہیدوں کا یہ مقدر ہے، صاحبائن کا تیری چادر ہے، ان کے سینوں پہ میری بی بی داغ ماتم نشان حیدر ہے. اے میری بی بی، اے میری بی بی، خلد میں شہید جب جائے تیری آواز آئے آنے دو، یہ ہمارا ہے. خون بن کر رگوں میں ہے نہا، میری نسلوں میں بھی رہے نہا، جیسے میں نے پڑھا ہے بچپن سے میرا نادے علی پڑھے نہا. اے میری بی بی، اے میری بی بی، اس کے دل میں ولایت حیدر، میرے ماں باپ کی طہارت کا ایک اشارہ ہے. تیرے دل پر ہے جو ستم ٹوٹے، زندگی میں جو تو نے غم دیکھے، آسمانوں زمین پہ گر ہوتے مثل شب وہ سیاہ ہو جاتے. اے میری بی بی، اے میری بی بی، دیکھ کر. اعظم عمران خان صاحب نے 4 بجے فون کیا اور کہا کہ میرا جہاز لے کر جاؤ اور جا کر ان کو یہ پیغام دو کہ کسی صورت میں بھی ان حملہ آوروں کو جنہوں نے 11 شہداء کو اور لاتعداد لوگوں کو زخمی کیا نہیں چھوڑیں گے. اور یہی پیغام میں نے اپنی عظیم افواج کو بھی یہاں پہنچتے سار دیا ہے. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ مجرم نہیں بچ سکیں گے، اللہ اور رسول کے حکم سے یہ نہیں بچ سکیں. ہم یہاں پہ اپنے شہیدوں کو لے کر یہاں پہ بیٹھے ہوئے اتنی سردی میں تاکہ ہمارے مطالبہ قبول ہو، اور آج کے بعد کوئی ہزارہ ٹارگیٹ میں کوئی ہزارہ ذبح نہ ہو، ٹارگیٹ نہ ہو. کب تک ایسے ہم مارے جائیں گے؟ رات کو تو اس نمائندے شیخ رشید صاحب یہاں پہ آئے تھے تو ان لوگوں نے ہمیں پیسہ ڈیمانڈ کیا. ہم لوگوں کو پیسے کی بھوک نہیں ہے، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے. ان لوگوں نے کہا فی بندہ ہم 15 لاکھ 10 لاکھ دے دیتے، آپ دھرنا ختم کر دو. نہیں، ہمیں پیسہ نہیں چاہیے، ہمیں امن چاہیے، ہمیں تحفظ چاہیے، ہمیں سیکیورٹی چاہیے. ہمیں وجہ بتاؤ، بلا وجہ ہمیں ٹارگیٹ کر کے، ہمیں بم دھماکے میں اڑا کر کے، ہمیں ذبح کر کے ہمارا گناہ کیا ہے؟ بچے نے میرا کمر توڑ دیا،
ظالموں نے बेदर्दी से हमारे 10 बंदों को ज़िबा किए। कोई जानवर भी इतनी बेदर्दी से ज़िबा नहीं करता है। मेरा नाम आमना है। मैं वो जो यहाँ पे 10 शहीद मौजूद है, जनाजे 10 जनाजे हैं। वो जो सबसे छोटा बच्चा शहीद है, 18 साल का नहीं, मैं उसकी बदनसीब वालदा। उनका कोई भाई नहीं, उनका कोई बेटा नहीं है। कोई ऐसे जुल्म करता है। ये एक ही घर के हमारे 5 नौजवान हैं और इनका गुजर बसर भी है कि उनके वालिद 60 साल से अबाव हैं, फिर भी वो एक माइंस में एज अ मुंशी काम करते हैं। 6 बहनों का इकलौता भाई, और कल जो है वो जाम शहादत उसने नोश की। सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में शिया मुसलमानों को कत्ल किया गया है। अलबत्ता मैं बार बार ये कहते हुए एक जुमला और भी कह दूं कि हमें किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। हमसे ज़्यादा अच्छी तशरीह इस्लाम की कोई नहीं जानता। हम उस घर से जुड़े हुए हैं जहाँ कुरान उतरा है। हम उस घर को डायरेक्ट मानते हैं कि जिनके यहाँ वही उतरती है, जिनके यहाँ कुरान उतरता है। लिहाजा हमें कोई इस्लाम न बताए कि मुसलमान कौन होता है। हम बताने की पोजीशन में है कि कौन मुसलमान हो सकता है और कौन मुसलमान नहीं हो सकता। कान कनी की मजदूरी करते हुए कोयले की कान से कोयला निकालने वाले मज़दूरों में ये मज़दूर थे। तकरीबन 11 के जनाजे मिल चुके हैं और कुछ जनाजे अभी, कुछ लोग ना मफकूद हैं, कुछ लोग नामालूम जगह पर ले जाकर उनके साथ क्या हुआ होगा वो अब मालूम होगा। मच के रास्ते को एहतजाजन रोक दिया गया है और जनाजे उनके रोड पर ला के रख दिए गए हैं। और जो तस्वीरें पूरे पाकिस्तान ने देख ली, पूरी दुनिया ने देख ली कि उनको पहले हाथ बांधे गए उनके, फिर पट्टी बांधी गई और फिर जिस छुरी से काटा गया है वो छुरी भी जिस साइज़ की है कि इंतहाई तकलीफ़ के साथ उन्हें दिल खराश है और दिल गिरफ्ता हैं, अफसोस है। मगर मैं 2 बातें करना चाहूँगा इस ये वाक़या था जो मैंने बयान किया। एक बात तो हम करेंगे इनके वारिसों से। मज़दूर तबका है, डेली वेजेस के लोग, दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग, ज़ाहिर है उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका ख़ानदान अब मुद्दतों इस तकलीफ़ में रहेगा और उनके साथ क्या होगा उनके साथ वो सबको पता है कि क्या हुआ है पहले मज़लूमों के साथ और शहीद हो जाने वाले खानवादों के साथ। तो एक तो उनको ताज़ियत पेश करते हैं, उनको तसलियत पेश करते हैं उनके घर वालों को, और दूसरी जो बात है वो है रियासत से और पाकिस्तान से, हुकूमत से। वो ये कि हमारा सवाल है कि जिस तरह माजी के सानेहात को दाखिल गोदाम कर दिया गया और उनकी रिपोर्टों को गोदाम में डाल दिया गया, हमें नहीं बताया जाता कि सानह आशूरा की रिपोर्ट कहाँ है, हमें नहीं बताया जाता हत्ता कि सानह कोयटा जो कई सानेहात हुए, सानह लाहौर, मुल्तान, डेरा गाजी खान, मैंने एक लिस्ट मुरतब की है, 100 से ज़्यादा बड़े सानेहात पाकिस्तान में हमारे साथ हुए हैं। सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में शिया मुसलमानों को कत्ल किया गया है। मक्तल से आ रही है सदा, ए अमीर शहर, इजहार गम न कर, मेरा कातिल तलाश कर। आज बलूचिस्तान में दोबारा 9 बरसों में ये मालूम ही नहीं है कितना वाकया है। मुसलसल हम लाशें उठा रहे हैं शहदा के, और हज़ारा कम्युनिटी, हज़ारा शिया कम्युनिटी, उनको सिर्फ इस बात की सज़ा दी जा रही है क्योंकि वो शिया हैं। तो जब जिसका जी चाहता है वो उठ के उन पर हमला कर देता है। पहले जो ज़ायरीन जा रहे थे, ईरान जाते थे बाय रोड, उनको शहीद किया जाता था। पिछले 20 बरसों में मुसलसल हुकूमत पाकिस्तान के तमाम इदारे, खुसूसन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसलसल नाकाम होते रहे। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि अगर जिस तरह से इन्होंने ये तमाशबीन बन के देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, ना आज तक कातिल पकड़े गए, ना सहूलत का, बल्कि हुकूमत इजहार यकजहती करने के बाद, इजहार हमदर्दी करने के बाद चली जाती है और उसके बाद फिर पलट के देखती भी नहीं कि इनके साथ क्या हुआ। मैं कोयटा में जनाजे रख कर बैठे हुए अपनी माँओं, बहनों, बेटियों और बुजुर्गों, जवानों से यार्ज करता हूँ, शहीदों की फैमिली से यार्ज करता हूँ, आप तनहा नहीं हो, आप मजलूम हो, आपके बच्चे मारे गए, आपके भाई मारे गए, बेदर्दी से उन्हें कत्ल किया कर शहीद किया गया है। हम इस मजलूमियत में आपके साथ हैं, हम तनहा नहीं हो। आप देखना पूरा पाकिस्तान तुम्हारे लिए निकलेगा अगर तुम्हारे मुतालबात पर अमल नहीं हुआ।
तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। पूरा पाकिस्तानी दुनिया में लोग आपके लिए निकलेंगे। आपने मायूस नहीं होना है। इस वाक़े ने हर शरीफ और बाज़मीर और अहले दिल इंसान के दिल को हिला के रख दिया। इसने झंझोड़ के रख दिया इंसानी ज़मीर को। हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर अगर किसी खुदा न खास्ता बच्ची के साथ रेप हो जाए, ज़्यादती हो जाए, जब तक अपने आप को वो आग न लगाए हमारा सिस्टम हरकत में नहीं आता। हमें जनाजे रखने पड़ते हैं, हमें जनाजे रख कर बाहर बैठना पड़ता है, सर्दी में बारिशों में बैठना पड़ता है। कब हमारे मुल्क के अंदर गवर्नेंस ठीक होगी, कब हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? हमारी हुकूमत का इम्तिहान है ये सौदा। लिहाजा मजीद ताखीर न करें, इन चीज़ों को हल करें, जल्दी करें इसको, और इनके लोगों के सब्र का इम्तिहान न लें। और मेरे बहनें, मेरी माएँ, बहनें, बेटियाँ, भाई बड़े जो बैठे हैं, अब तनहा नहीं हो। अब देख रहे हो अभी इस्लामाबाद में लोग खड़े हैं, बैठे, पूरे पाकिस्तान में, लाहौर में, कराची में, हर तरफ लोग बैठ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह मज़लूमियत आपकी, मज़लूमियत की आवाज़ में ताकत पैदा होगी, और इससे कातिलों को इंशाल्लाह रुसवाई मिलेगी, वो शिकस्त खाएंगे, वो नाउमीद होंगे इंशाल्लाह। और हमारी हुकूमत की भी जिम्मेदारी है उस इलाके के अंदर, रीजन के अंदर जितने भी इनके वहाँ पर सेल्स मौजूद हैं, अड्डे मौजूद हैं, बिला इस्तिस्ना अक्रॉस द बोर्ड कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके वजूद से इनको मिटाना चाहिए सिरे से। लोगों के पास नाम मौजूद है वहाँ पर कि कौन कौन लोग हैं जो दहशतगर्द और दाइश के साथ हैं, आम बंदों को पता है, नाम लेते हैं बाकायदा वो। इसलिए ज़रूरी है कि फ़ौरन उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि इन शहीदों के वारसों और इन मजलूमों के ज़ख्म पर मरहम रखा जाए। यहाँ तक नहीं रुकेगी। इमरान खान, तू जाएगा, जो तुझे रोक रहे हैं जाने के लिए वहाँ, वो तुझे खुद वहाँ ले जाएंगे। क्यों? कि अब तुझे और उसे नहीं, हुसैनी से वास्ता पड़ा है। करेंगे। आप देखना इसी जगह के ऊपर अहले सुन्नत के उलमा को देखना, पीरों को देखना, मैं लेके आऊंगा पीरों को, और पीरों हुजरों से निकला हो। इस वक्त फिर एक करबला का मैदान वफा हो गया। तुम देखना इंशाअल्लाह वक्त आएगा कि आप देखेंगे कामयाबियां मिलेंगी, कामरानियां मिलेंगी। आगे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे खुदा के लिए, यार बहुत जनाजे हम उठा चुके, अभी तक हमें लिबरल ने बहुत बेवकूफ़ बना लिया, लिबरल ने बहुत ज़्यादा जुल्म कर लिया। आओ यार, नफरतों से नफरत करके एक दूसरे का एहतराम करना सीखो, मोहब्बतें करना सीखो, प्यार करना सीखो। अल्लाह हमें कामयाबी और कामरानी जनाब अली हमजा साहब से कि वो बारगाह इमामत में, बारगाह सैयदा में नजराना अकीदत पेश करे। जनाब अली हमजा। अगर हमारे मर्द हजरात या हमारे गवर्नमेंट के जो लोग अपना सौदाबाजी करके अपनी दुकानदारी सजा के अगर ये तदफीन के लिए राजी होते भी हैं, हम खवातीन इंशाल्लाह अपने इन चादरों के उस पे अपने बीबी ज़ैनब के चादर के साए तले इंशाल्लाह हम अपने जवानों की मैयत को इस तरह दफनाने नहीं देंगे।